Students, today we are discussing about the X-ray diffraction by crystals. How the crystals can diffract X-rays, because any radiation used for the structure determination must have a short wavelength comparable with the interatomic distances, that is the distance between the atoms. X-rays are having the line have the wide range of electromagnetic spectrum, that is 0.2 angstrom to 2 angstrom, and the interatomic distances between the atoms of a crystal is approximately 10 to the minus 10 meter, which lie in this range. So the X-rays are the appropriate radiation to have the crystal can be used for the structural determination of the crystal. A neutral atom, a neutral atom in a uniform electric field, if this is a uniform electric field, and in a uniform electric field एक न्यूट्रल एटम पर कोई भी नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. दाउ द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द एटम एक्सपीरियंसेस फोर्सेस. इंडिविजुअल चार्जेस जो होंगे एटम के वो तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, बट यूनिफॉर्म फील्ड में एक न्यूट्रल एटम का जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है. पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है, positively charged nucleus experiences force in the direction of the field, because the positive charge have the same direction. It will find the attraction towards the negative plate, so it is feeling the same force as in the direction of the applied field. But the negatively charged electron are forced in the opposite direction to the applied field. So that is the main reason why the electron orbit are always eccentric and atoms becomes polarized when we placed it inside the electric field. So if an electron happens to be in the path of the X-rays, अगर कोई इलेक्ट्रॉन X-rays के पाथ में आता है तो it will scatter the radiation. मैंने यहाँ एरो से ब्राउन एरो से रेडिएशंस को स्कैटर होते हुए दिखाया है. इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द array of the crystal, and then it is scattered in the all direction from the atomic planes. So whenever the electric field of the periodically changing electric field है, जब वो एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रॉन को मिलता है, इलेक्ट्रॉन पर जो periodically changing field एक्ट करता है, उस कारण से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन में आ जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे गेट द acceleration due to this electric field. They come in the oscillation, so they start vibrating around their main position, and when they are vibrating around their main position, they after some time they lose their extra energy and declerate, and then they become a source of the electromagnetic radiation. They scatter the electromagnetic radiation, or we can say the extra energy absorbed by them. After coming in their normal position, they will scatter the absorbed radiation with the same wavelength and frequency as incident radiation, and they scatter this radiation in any direction. किसी भी direction में वो scatter कर सकते हैं. But the electron is scattering, accelerating in the phase. When the electron accelerates due to the periodically changing electric field, the electron accelerates in the same phase with the X-ray wave, and इलेक्ट्रॉन itself become a source of disturbance. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस अगर क्रिस्टल में क्रिएट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सो दे आर ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इनसाइड द क्रिस्टल. Electron will scatter original X-ray wave, means there will be no change in the frequency and wavelength of the X-ray. फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक्सरे की वही होगी स्कैटर होने के बाद भी जो ओरिजिनल थी जब उसने इंसिडेंट किया था एटॉमिक प्लेन, क्रिस्टल के एटॉमिक प्लेन पर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग इन फेज विद द एक्सरे वेव. ईच इलेक्ट्रॉन इन द एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन जो एटम का होगा वो एक्सरे को स्कैटर कर रहा है. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास होंगे उतने ही ज़्यादा वो रेडिएशन को स्कैटर करेंगे. So the atom as a whole therefore scatter X-ray to an extent depend on the number of electrons. That is,
द एक्सरे स्कैटरिंग विल डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर एक्सरे स्कैटरिंग डिपेंड करेगी। और जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड रेडिएशन की वो डायरेक्शन के साथ साथ वेरी करती चली जाएगी, and it will falling off as the angle between the direction of the scattered radiation and the incident wave. स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट वेव की एंगल पर डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेडिएशन, एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेडिएशन डिक्रीज होती चल जाएगी, फॉल होगी एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन इंक्रीजिंग. So thus an atom in an एक्सरे बीम, अगर कोई एटम एक्सरे बीम के कंटेक्ट में है, एक्सरे जिस पर इंसिडेंट हुई है, तो वो एक एटम, दैट एटम इज कंसिडर एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेडिएशन. मीन्स अगर जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, इस पर मान लीजिए एक्सरे फॉल हुई इस एटम पर, तो इट स्टार्ट्स scattering the X radiation in all direction, means it is acting as the point source. पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, अगर इस पर कोई रेडिएशन फॉल होती है तो इट विल scatter that radiation in all directions. So that's same the atom we have, when X-ray incident on it, it will scatter the radiation in all direction. So it will behave as the point source. Generally, here we can see a series of scattered radiation. इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है, सीरीज ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन. ये स्कैटर्ड रेडिएशन है फ्रॉम ए लेयर ऑफ एटम्स. दिस इज ए लेयर ऑफ एटम्स एंड दीज आर द सीरीज ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन. And this series is formed on the regularly spaced atom. Regular spacing आपको atoms के बीच में यहाँ दिखाई दे रही है. So these are the series of wavefronts of X-ray by a row of regularly spaced atom. Each atom scattered radiation, X-ray radiation, producing about it a new set of spherical wave. ये देखिए, हर एक एटम ने एक्सरे को स्कैटर किया और उस स्कैटरिंग से जो वेव फ्रंट बनी है, एंड उस वेव फ्रंट ने अपने आप एक दूसरी वेव फ्रंट को जनरेट किया, और फिर थर्ड को, एंड देन फोर्थ को, और फिर फिफ्थ को. सो वी कैन से दैट एक्स रेडिएशन प्रोड्यूसिंग अबाउट इटसेल्फ ए न्यू सेट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. एक न्यू सेट स्फेरिकल वेव एनवलप्स का हमारे पास बनता चला जाएगा. Any lineup of envelopes constitute a combined wave. कोई भी एक एनवलप अगर हम उठाकर देखें तो हमारे पास एक कंबाइंड वेव मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट की तरफ हमें एक कंबाइंड एनवलप, अगर आप एक एनवलप लेकर चलते हैं तो हमें एक कंबाइंड वेव मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रही है. जैसे कि यहाँ मैंने ऑरेंज कलर से आपको दिखाया है, एक कॉमन टेंजेंट की जो वेव है, कॉमन टेंजेंट की कंबाइंड वेव यहाँ पर हमें दिखाई देती है. तो उन कॉमन टेंजेंट्स को मिलाकर हम अपना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So when it is near the atoms, जब आप अगर नियर द एटम के नज़दीक अगर हम देखते हैं, when the wave is near the atom, जो एटम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उन एटम के जब ये नज़दीक होती है तो वेवलेंथ हमें कुछ क्रिनुलेटेड दिखाई दे रही है. क्रिनुलेटेड है वेवलेंथ जब हम एटम्स के नज़दीक हैं, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो स्फेरिकल वेव का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और लास्टली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो सभी टेंजेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एक कंबाइंड वेव को बनाएंगे. ये देखिए, कंबाइंड टेंजेंट फॉर ऑल दीज which have the large radius of curvature for the spherical wavefront. So how we can calculate the first order, second order and the third order wavelength? तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए,
कैसे बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और एनी ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न इन क्रिस्टल्स। तो ये एटम क्या है? एटम सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब एक्सरे इन एटम्स पर फॉल होती है तो ये स्कैटर कर देते हैं उसको ऑल डायरेक्शन में। हर एक एटम के नज़दीक एक्सरे एक एनवलप बना रहा है, ये दीज आर द एनवलप्स ऑफ द वेव्स। तो वेव, ये जो वेव फ्रंट बन रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये जब एटम्स के नज़दीक होती है तो ग्रेनुलेटेड होती है। जैसे जैसे एटम से दूर होती चली जाती है, सोर्स से दूर होती चली जाती है, एटम है जी सोर्स, जैसे जैसे सोर्स से दूर होती चली जाती है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता चला जाता है। कुछ डिस्टेंसेस पर आने के बाद ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक सोर्स का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उन सभी के टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम मिला सकते हैं। तो all tangents are here meet with the green color, and this green color straight line shows the zeroth order diffraction pattern. So this is the zero order diffraction हमें यहाँ मिलता है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बढ़ जाता है कि उन सब का जो एक टेंजेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन से मीट होता हो। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हमें किस तरह से देखना होता है, कैसे बनता है? पॉइंट सोर्स, फर्स्ट पॉइंट सोर्स के नज़दीक हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसका क्रस्ट है। इस एनवलप, ये जो क्रस्ट है ये वेव एनवलप है, इस एनवलप का जो टेंजेंट है दैट इज़ वो नेबरिंग एटम के फर्स्ट सेकंड एनवलप से फर्स्ट एनवलप तो ये हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज़ द नेबरिंग एटम सेकंड वेव फ्रंट, दिस इज़ द नेबरिंग एटम थर्ड वेव फ्रंट। तो इस तरह से नेबरिंग एटम के नेक्स्ट वेव फ्रंट अगर हम टेंजेंट को मिला देते हैं तो हमारे पास बनता है फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न। फर्स्ट एटम, लेट अस कंसीडर दिस इज द फर्स्ट एटम, ये इसका वेव फ्रंट है। सेकंड, इसका इस फर्स्ट एटम का नेबरिंग एटम का जो सेकंड एनवलप है उससे हमने मिला दिया। तो एक एक एनवलप के डिफरेंस पर टेंजेंट को हमने मिला दिया है बाय दिस ऑरेंज लाइन। तो एक एक एनवलप के डिफरेंस नेबरिंग एटम का लेते चलेंगे, वी गेट द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो दिस ऑरेंज लाइन शो अस द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न। जिस तरह सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें लेना है, सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न में सोर्स, कोई भी एक सोर्स ले लीजिए आप, जैसे कि हम इसको एक सोर्स मान लेते हैं। फर्स्ट सोर्स दिस एटम, इस एटम से हमें let us consider this as a source, then this is the first wavefront by this source, this is the neighboring atom, this is the first wavefront by the neighboring atom, this is the second wavefront by the neighboring atom, and this is the third wavefront by the neighboring atom। पहले हमने क्या लिया था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिया हमने कि फर्स्ट वेवफ्रंट ऑफ फर्स्ट एटम इज एंड देन सेकंड नेबरिंग एटम का जो सेकंड एनवलप है। अब हमें क्या लेना है, सेकंड एनवलप को छोड़ देना है और हमें उसका लेना है थर्ड एटम। मतलब कि सेकंड ऑर्डर ड्रॉ करने के लिए अब हमें दो एनवलप का डिफरेंसेस लेना है। तो दो एनवलप का डिफरेंस लेंगे हम। ये देखिए, दिस इज द first envelope of this first atom, and then this is the थर्ड एनवलप ऑफ द नेबरिंग एटम। तो दो एनवलप का डिफरेंस हमने ले लिया। इसी तरह इसका नेबरिंग एटम है ये और इसका डिफरेंस ले लेंगे, दिस इज द फर्स्ट एनवलप ऑफ द थर्ड एटम, दिस इज 1 2 3 and 4। तो हमें किस तरह से मिलाना है, इसका टेंजेंट ले लेंगे हम, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, इन तीनों को हम मिला देंगे बाय ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम इन तीनों के टेंजेंट्स को मिला दें देन वी फाइंड द सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न। इन तीनों टेंजेंट्स को अगर हम मिला दें बाय ए स्ट्रेट लाइन देन दिस इज द सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसी तरह से हमें थर्ड एनवलप के लिए लेना है। थर्ड एनवलप में हमें इसी प्रकार 3 एनवलप्स का डिफरेंस ले लेना है फ्रॉम द नेबरिंग एटम। उससे फोर्थ ऑर्डर में हमें 4 एनवलप्स का डिफरेंस ले लेना है विद इन द नेबरिंग एटम्स। So in this way the first order, second order and nth order diffraction patterns are formed for a crystal.